So today, I'm just revise the what is the different kinds of operation and what is relational algebra exactly. So in that, see, in case of the relational algebra, it is a kind of a procedural language which basically used to provide a mathematical expression by which we can extract the information which is stored in the relational database system. Clear this point? What is? And this all mathematical notations are given by great mathematician, that is called EF Code. EF Code given the model of relational data model. Over that he defines some relation algebra, a mathematical notation by which we can extract some information. So there are some operations used in that relational algebra. We have select. This sigma is used for selecting the number of rows from the relation or table, while projection operation is used to select the particular column value from the table. So these are the some union, set difference, Cartesian product, intersection, and in these are the set operations. Union is a set operation. That means when two relation or table which are union compatible, they are combine the data. But in that you have to see you can combine the data horizontally, right? Sorry, combine the data vertically. Set difference is same. It is also defined over the set operations. Cartesian product, when you are combining two different table, right? And it will provide the all the relation from one table that relate to all the tuples in the other relation, right? So renaming is used for renaming the relation name or attribute name. So we have seen all these operations in earlier days. So other operation we have seen in that, these these are the operation that is called a join operation. Join operation combines related tuple from different relation if and only if a given join condition is satisfied. Basically, join operation derive from the Cartesian product, right? So basically, join operation is we have to do the Cartesian product. Over that we have to apply the selection, right? So we have to see the Cartesian join operation is a combination of Cartesian product and the selection operation. So there are two kinds of join operation. One is inner join, another is outer join. In inner join, you have seen the natural join. That means one of the attributes in both the table must be common. While in the equijoin and theta join, in that we have to provide the condition. If conditional or a relational operator is equivalent, then we have to call it a equivalent equijoin. But if a condition statement contain greater than, less than, or less than equivalent to, greater than equivalent to, then we call it is a theta join. Another kind of join is that is outer join. In the inner join, we have to only combine the matched tuple. But in case of outer join, we not only combine the matched tuple, but also those are unmatched tuple. So based on their operation, like left outer join, we have to combine all the unmatched tuple of left table in the resultant table. While in the right outer join, we have to combine all the matched tuple, but also all the unmatched tuple of right table. While in the full outer join, we have to see, we have to combine not only the matched tuple, but also those who unmatch in both left and right. That's why it's called the full outer join, right? So we have already seen all these notations in that. Basically, we just revise this so that we can go to the so you have also seen the division operation is applied to two relations such that Rz divide Rx, where X is a subject or Z, then Z, let by equivalent to Z minus N. That means we have to find out Z equivalent to X minus N. So we can get here R of by relation, right? If we any relation Rz is divided by S of X, we get a relation R of Y such that Z equivalent to X units Y. So in that case, every tuple of Y must relate to every tuple of X must relate to every tuple of
Z relation. Now, so all these we have already done in the previous class, but today we will discuss some of the examples. So we go to the last slide. In that we have some so already I have taken this. So one of the paper we have taken that first, that is in 2015-16. So in that, ये तो first unit के सारे questions हैं. We have discussed later on in detail, but today we will discuss the paper in which relational algebra is asked in that. Right, see here. This is a question that is मैंने कहीं और भी डाउनलोड किया हुआ है, देखते हैं. Yeah, here is that. See, here is a question that is, consider the following. See, attempt any 5 questions from this section. So in that every question having the 10 marks. So देखिए 10 marks में question पूछा गया है. Consider the following relation, that is student, that contain SSN, name, address and major, course, code, title and registered SSN and code. Right. So we just take a note in that. We have a table that contain hello. Yes, sir. Yeah. Connection disconnect. So we have a table that contains student. That student contain SSN and name and address and major. Right. Another table that will be course, and that course will contain code, right, and title. Third one is there registered, and that will contain SSN and code. So this is the table in that, right? So we are just saying let it in that. See the course student may SSN is your primary key. So just we have taken in a student SSN is your primary key. In the course, code is your primary key, and in register, we have a SSN is your primary key, right? Now, over that, first problem here, जो question पूछा गया है, see here, list the codes of courses in which at least one student is registered. List the codes of course in which at least one student is registered. Question है, list the codes of course in which at least one student is registered. Right? Now, बताइए बेटा आप लोग कि कैसे करेंगे इसको सॉल्व. हाउ टू सॉल्व इट. List the relational algebra पूछा गया. देखिए, consider the following. Use relational algebra to answer the following. List the codes of courses in which at least one student is registered. So कौन बताएगा? कैसे करेंगे? आकांक्षा? Yes, sir. Yeah, tell me. List the codes of course in which at least one student is registered. See, आपके पास कुछ टेबल होंगी, राइट? एक आपके पास स्टूडेंट की टेबल है, ठीक है? और स्टूडेंट की टेबल में क्या क्या दिया? SSN दिया और राइट
यहाँ पे SSN है, कोई नेम है, देन एड्रेस है एंड मेजर है। कोई भी सिमिलरली हमारे पास एक टेबल और है जो कि कोर्स की है। ठीक है, और एक टेबल हमारी रजिस्टर्ड स्टूडेंट की है जो किस कोर्स में उन्होंने लिया है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कोर्स की टेबल में क्या है, और हम बात कर रहे हैं रजिस्टर्ड की टेबल में क्या है। यहाँ पर कोड है और टाइटल दिया हुआ है, कोड एंड टाइटल। और नाउ यहाँ पे हमारे पास SSN है और उससे करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होंगे, कोड होंगे। अब बात आती है कि बात कर रहे हैं अगर कोई 1-1 स्टूडेंट है, 1-1 स्टूडेंट है, ए नाम का कोई स्टूडेंट है, हम कह लेते हैं। ठीक है, और उसका एड्रेस है वो दिल्ली का है। ठीक है, और उसको मेजर में कोई उसने मेजर उसने बनाया कोई भी XYZ करके, कोई उसने एक उसका मेजर सब्जेक्ट है। ऐसे ही एक SSN 1-2 है। ठीक है, सुमित है। ठीक है, वो नोएडा में रहता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहे हैं, बट आपको ये बिना एग्जाम्पल के ही करना होंगे। ठीक है, उसका है ABC कोई भी मेजर है। ठीक है, एक है आपके पास 13 नंबर पे राकेश कोई मान लेते हैं। ठीक है, और वो आपका कहाँ रह रहा है, ये भी नोएडा रह रहा है। ठीक है, और उसने EFG करके कोई भी कोड मेजर ले रखा है। ठीक है, अब कोड है हमारे, एक C1 कोड है, एक C2 कोड है, एक C3 कोड है। ठीक है, टाइटल है, सपोज C1 कोर्स में हम कहें कोई DBMS का कोड टाइटल है, कोड। ठीक है, एक में डा है। ठीक है, एक में ऑटोमेटा है। ठीक है, अब इन कोर्सेज को ये बच्चों ने रजिस्टर किया है। 1-1 ने इस कोड को रजिस्टर किया है, C1 को 1-1 ने C2 भी किया है सपोज। ठीक है, एक 1-2 है जिसने को C1 किया है, 1-2 ने किया है C3 कोर्स कर लिया है, 1-3 है जिसने केवल C1 कोर्स लिया। लाइक दिस डाटा हमारे पास। चलिए अब बात करते हैं, लिस्ट द कोर्स ऑफ कोर्स इन विच एटलीस्ट वन स्टूडेंट इज रजिस्टर्ड। सो राइट द रिलेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। करना क्या है, अब आपको यू हैव टू फाइंड आउट कोर्स ऑफ कोर्स इन विच एटलीस्ट वन स्टूडेंट इज रजिस्टर्ड। तो बताओ किस टेबल में रजिस्टर्ड स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है और कोड की कहाँ है, रजिस्टर्ड टेबल में, registered table mein, right? We have to get the information from the registered table. And what we want to get this information? We want to get this information as a code of course. So see here in the registered table, we have code of courses, right? So what we will do? We will do these students registered in this course, so we get the information from this table. तो बताइए कौन सा ऑपरेशन होगा, कौन बताएगा? वेरी गुड, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय पाई। प्रोजेक्ट का मतलब क्या था, वी हैव टू सेलेक्ट द कॉलम। So selection of column, that means we have to use the project. And what we want to select? We want to select only the code. So we have to write here code. So pi of code with what the relation in that you have to select all this information. You want to get this information from the register table. So it is the register table. So this is a case.
So this is your result. So you can get this is a result. क्लियर हो रही? तो पहला क्वेश्चन कितना आसान था. अब बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम के लिए. दूसरा प्रॉब्लम क्या है चेक कर लेते हैं. See here, in that second question says that list the title of registered courses. List the title of registered courses. So we have to write here. List the title of registered courses. बताइए. सेकेंड प्रॉब्लम है. So you get list the title of registered courses. कहां से मिलेगा? कोर्स में से मिलेगा सर. कोर्स टेबल से. कोर्स टेबल्स में. टाइटल ऑफ द रजिस्टर्ड कोर्सेज. रजिस्टर्ड कोर्सेज कौन से हैं? जो जिनका रजिस्टर्ड टेबल कोड में कोड रजिस्टर्ड होगा. है. तो क्या होगा बताइए. क्या हम लिखेंगे बताओ. यस सर देख क्या रहा हूँ. हम एक्सप्रेशन लिखें? अनुकृति, आकांक्षा राय, बताओ. आप लोग आंसर दो. कैसे आएगा? हमारा यहाँ पे दो चीजें हैं बहुत ही. एक अगर एक वर्ड आ गया तो देखिए मीनिंग चेंज हो जाती है. लिस्ट द टाइटल ऑफ रजिस्टर्ड कोर्सेज. देखिए कोर्स तो और भी हो सकते थे. सपोज वी के से हियर वन मोर कोर्स इज देयर. Like we say about courses, C4 course is there, and that is we say about DBMS हो गया, DA हो गया, ऑटोमेटा हो गया, डाटा स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल. बट यहाँ पे क्या है? C1, C2, C1, C3, C1. कौन सा कोर्स नहीं हुआ? C4 कोर्स हमारा रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ. किसी स्टूडेंट ने नहीं लिया. हम किसकी इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं? वी वांट ओनली द टाइटल ऑफ द रजिस्टर्ड कोर्सेज. ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर. तो यस सर. क्या ऑपरेशन करें? कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे? सर हम पहले इसमें फाइल लेके कोड जॉइन का फिर ऑपरेशन यूज करेंगे. Very good. First of all, we have to use the join operation between course and register. Right? Those courses, क्योंकि यहाँ पे कोर्स है, उनका with this registered जो मैच करेंगे. अब कौन कौन से मैच कर रहे हैं एज पर दिस टेबल? ये आप नेचुरल ज्वाइन कर सकते थे या आप लिखते कोर्स डॉट कोड. देखिए कोर्स डॉट कोड, कोर्स डॉट कोड दैट इज इक्वल टू. देखिए अब इसमें हम डायरेक्टली आप मान के चलिए, क्योंकि सब में एक ही नाम दिया है. यहाँ पे कोड दिया है, यहाँ पे कोड दिया है, या यहाँ पे देखिए एसएसएन दिया है तो यहाँ पे एसएसएन दिया है. तो हम डायरेक्टली ये मान के चलिए ये कौन सा ज्वाइन हो रहा है? नेचुरल ज्वाइन. कैसा ज्वाइन होगा? जब आपका सेम ही है तो क्या कहलाता है ज्वाइन? नेचुरल ज्वाइन. सो यू कैन. तब जरूरी नहीं होता है कि आप क्या दें, यहाँ पर कंडीशन दें. क्या दें? कंडीशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है फिर. ठीक है. हम नहीं तो आप अगर समझना चाहो तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे एक तरीके से होगा कोर्स डॉट कोड इक्वल टू रजिस्टर डॉट कोड. बाय डिफॉल्ट अगर ये नेचुरल ज्वाइन यू कैन टेक इन. राइट. सो इन दैट केस यू कैन से कोर्स ज्वाइन विद रजिस्टर. अब क्या करें? यहां से तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक टेबल बन जाएगी जिसमें कोड आ जाएंगे, टाइटल आ जाएंगे, एसएसएन आ जाएंगे. इसमें से क्या चाहिए? टाइटल. इसमें से टाइटल. सो क्या कौन सा ऑपरेशन? प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट ऑफ टोटल. so it is now total. so this is your result. ये सबको समझ में आ रहा है?
यस सर। कोई को डाउट हो तो पूछ लीजिए कि क्यों कैसे हम कर रहे हैं ये चीजें। सर ये वाला फिर से बताइए, क्लियर नहीं हो रहा मुझे। क्लियर नहीं हुआ? हमें क्या चाहिए था? लिस्ट द टाइटल ऑफ रजिस्टर्ड कोर्स, लिस्ट द टाइटल ऑफ रजिस्टर्ड कोर्स। सो देयर आर सम ऑफ द कोर्सेज। देखिए हमारी इस टेबल में अगर हम देखें तो C1, C2, C3, C4 कोर्सेज हैं। एक डीबीएमएस है, डा है, ऑटोमेटा है और डाटा स्ट्रक्चर है, राइट। एंड वी हैव a registered table in which some student register some course. तो सपोज 1-1 ने C1 रजिस्टर किया, 1-1 ने C2 भी रजिस्टर किया, 1-2 ने C1 रजिस्टर किया, 1-2 ने C3 रजिस्टर किया, 1-3 ने C1 रजिस्टर। ये बात क्लियर हो रही? इसको ये क्वेरी क्या कह रहा है कि ऐसे कौन से कोर्स हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं, उनका टाइटल बताइए। अगर आप कहते हैं लिस्ट द टाइटल ऑफ द कोर्सेज, लिस्ट द टाइटल ऑफ द कोर्सेज, क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं यहाँ पे इसको हम जस्ट ये समझ लो ये नहीं है आपके में। अगर तो क्या होता? लिस्ट द टाइटल ऑफ द कोर्स। तो टाइटल ऑफ द कोर्स केवल एक ही जगह से आ जाते हैं, जितने भी टाइटल है कोर्स के, डीवीएमएस, डा, ऑटोमेटा, डीएस, सारे के सारे जितने भी इसमें लिस्टिंग है होता। तब क्या सीधा लिखते? पाई ऑफ टाइटल फ्रॉम किस टेबल से? कोर्स से। कोर्स। ठीक है, ये तो तब की बात थी। अब वो कह रहा है कि लिस्ट द टाइटल ऑफ रजिस्टर्ड कोर्स, यानी कि जो ऐसे कोर्स जिनको रजिस्टर्ड किया गया है उनके टाइटल क्या है। दैट मीन्स हमें इस टेबल का भी यूज हो गया है। इस टेबल को इस टेबल के साथ क्या करना पड़ेगा? नेचुरल ज्वाइन। ज्वाइन करेंगे तो जो जो टेबल C1 C1 के साथ ज्वाइन होगा, C2 C2 के साथ ज्वाइन होगा, यहाँ C1 C1 के साथ ज्वाइन होगा, यहाँ C3 C3 के साथ ज्वाइन होगा, C1 C1 के साथ ज्वाइन। मतलब यही 3 टपल हमारे ज्वाइन हुए। और ये कौन कौन से आएंगे टाइटल इसमें से? डीवीएमएस, डा और ऑटोमेटा। सो दिस विल बी योर रिजल्ट कि ये ही हमारे क्या होगा। पहले कोर्स को हमने रजिस्टर के साथ ज्वाइन किया और उसमें से हमने क्या निकाल लिया? उसमें से हमने टाइटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, राइट। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। क्लियर हो गई? यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छी बात है। आप देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है लिस्ट द कोर्स ऑफ द कोर्सेज फॉर विच नो स्टूडेंट इज रजिस्टर्ड। लिस्ट द, ये हटा दूं या आप लोगों ने नोट कर लिया तो मैं, क्योंकि ये नीचे चला जाएगा, ये छोड़ो लिखता हूं मैं, अगर ये छोटा हो जाए इतने से काम चल जाएगा। दिख रहा है कि बड़ा करूं? सर अभी डिले हो रही है, स्क्रीन तो अभी शो नहीं हो रहा है। ओके 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 ओके, चलिए चलिए। नहीं सर, बड़ा करिए, इतने में नहीं दिख रहा। यस सर। अब सही है? ठीक है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, चेक कर लेते हैं क्या है थर्ड क्वेश्चन। लिस्ट द कोर्स ऑफ कोर्सेज फॉर विच नो स्टूडेंट इज रजिस्टर्ड। सो हियर वी राइट लिस्ट द कोड ऑफ द कोर्सेज for which no student is registered। ठीक है, release the codes of the courses for which no student is registered। बताइए अब क्या होगा इसका? list the code of the courses for which no student is registered। कैसे करेंगे? बताओ बेटा, कौन बताएगा? प्रतीक?
वैसे अगर आप इस टेबल से देखें, ये टेबल है, इसमें कौन सा आंसर आना चाहिए? आंसर क्या आना चाहिए? कौन सा कोर्स है जो जिसमें कोई भी स्टूडेंट रजिस्टर नहीं हुआ? C4 में। C4, ग्रेट। आंसर आना चाहिए हमारा C4। ये बात सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि इस कोड में कोई भी स्टूडेंट नहीं आया। देखो C1, C2, C3, 4, और ये कैसे आएगा? C4 कैसे माइनस आएगा? करके। माइनस करके। लेकिन आपको पहले क्या होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि कौन से कोड में स्टूडेंट रजिस्टर्ड किए हैं, कौन से कोड में स्टूडेंट रजिस्टर किए हैं। तो फिर आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ कोड हैं, अगर उनमें से वो माइनस कर दें जिनमें स्टूडेंट रजिस्टर किए हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑल द कोर्सेज or list of the code of courses for which no student is registered। ये बात सबको समझ में आ रही है? समझ में आया कि कैसे हम करेंगे? पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है कि लिस्ट द कोड ऑफ कोर्सेज फॉर विच नो स्टूडेंट इज रजिस्टर्ड। तो आप पहले नो से पहले, इससे करने से पहले आप ये देख रहे हैं फॉर विच स्टूडेंट इज रजिस्टर्ड, कौन कौन से कोड हैं जिनमें स्टूडेंट रजिस्टर्ड किया है। बताओ कैसे निकलेगा? लिस्ट ऑफ द कोड ऑन विच स्टूडेंट्स आर रजिस्टर्ड। सर जो फर्स्ट वाले का आंसर है वही वाला, फिर माइनस कर देंगे उसको पाई ऑफ कोड से। बहुत बढ़िया। कौन है? अनुकृति कौन है? ये नाम भी नहीं पता। अच्छा दिया नाम किसने दिया? अनुष्का, ग्रेट। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो कैसे करेंगे? पाई ऑफ, सबसे पहले निकाल लेंगे कोर्स जिनमें कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है, जिसमें स्टूडेंट रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड कोड कहाँ है? यहाँ पे हैं। तो यहाँ के कोड कैसे निकलेंगे? पाई ऑफ कोड फ्रॉम रजिस्टर्ड। ठीक है, यहां से हमारे पास डाटा आ गया जो रजिस्ट्रेशन वाले स्टूडेंट का, राइट। देन फ्रॉम दिस, राइट, ये तो रजिस्टर्ड है और कितने कोड है हमारे पास? तो वी हैव अ पाई ऑफ कोड फ्रॉम कोर्स। देखिए कितने आसान क्वेश्चन थे जो 10 मार्क्स में पूछे गए। और देखिए कंपलसरी है, आप अगर मैं अभी आपको सारे पेपर्स ओपन करके दिखाऊं तो आप ये देखेंगे केवल 3 चीजें हैं जो हमारे रिलेशनल अलजेब्रा है, रिलेशनल कैलकुलस है और एसक्यूएल। ठीक है, ये तीनों के एक क्वेश्चन होगा, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो। इनमें से हो सकता हो ये दोनों कंबाइन करके पूछे जाएं, इसमें से हो सकता है ये दोनों कंबाइन करके पूछे जाएं। 10 मार्क्स में हो सकता हो ये कंबाइन करके पूछे। एक बार तो तीनों ही पूछ लिए थे, रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल कैलकुलस एंड एसक्यूएल, एक ही क्वेश्चन के अंदर 10 मार्क्स में। ठीक है, तो दिस इज इन दैट कि वी हैव सीन कि पहले हमने वो निकाल लिए जितने भी कोड में रजिस्टर्ड है, और वो निकाल लिए जितने हमारे पास कोर्स हैं, एंड ओवर दैट वी हैव टू फाइंड द रिजल्ट। ये बात सबको क्लियर हो रही है कि कैसे किया? राइट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, ये सबको समझ में आ गया? अब देखिए क्वेश्चन उसी से ही बनते हैं। तो आ गया, ये रहा। फोर्थ क्वेश्चन है द टाइटल ऑफ कोर्स फॉर विच नो स्टूडेंट इज रजिस्टर्ड। द टाइटल ऑफ कोड फॉर विच नो स्टूडेंट इज रजिस्टर्ड। द टाइटल ऑफ कोर्सेज फॉर विच नो स्टूडेंट इज रजिस्टर्ड। तो व्हाट इज इन दैट? हमें ये इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहे हैं। यहाँ पे आ गया द टाइटल ऑफ द कोर्स, की बार आ गया टाइटल ऑफ द कोर्स, राइट। बताइए द टाइटल ऑफ कोर्स फॉर विच नो स्टूडेंट इज रजिस्टर्ड, क्या होगा?
सर ये जो इससे पहले वाली क्वेरी लिखी थी वो वैसी की वैसी रहेगी, उसके आगे प्रोजेक्ट टाइटल और लगा देंगे। बस टाइटल पूछा आपकी बात। यहाँ तो आपने डायरेक्ट करा था कि ये कोड निकाल लिए रजिस्टर वाले, यहाँ पे ये कोड निकालिए रजिस्टर वाले। अब वो कह रहा है कि इनके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, टाइटल क्या आएगा जिसमें कोर्स पे कोई भी स्टूडेंट रजिस्टर है, डीएस आएगा। आउटपुट तो डीएस आना चाहिए, ठीक है। तो डीएस कैसे आएगा? सर जो पहले वाली क्वेरी थी उसका ज्वाइन ले लेंगे हम कोर्स के साथ, फिर टाइटल से प्रोजेक्ट कर देंगे। मतलब जैसे ये वाली क्वेरी थी, लिस्ट द टाइटल ऑफ रजिस्टर्ड कोर्स, ये वाली थी ना क्वेरी, देखिए दिख रही है ना नीचे। यहाँ पे हम टाइटल निकाल लेते, ऑल द रजिस्टर्ड कोर्सेज, राइट। और पहले में से जितने भी टाइटल हैं तो पाई टाइटल, ठीक है, पाई टाइटल ऑफ कहां से, कोर्स से, माइनस अब की बात पाई टाइटल, क्योंकि देखिए ध्यान रखिएगा आप सेट डिफरेंस ऑपरेशन जब भी यूज करेंगे तो क्या होना चाहिए, यूनियन कंपेटिबल, राइट रिलेशन, तो हमें उसको यूनियन कंपेटिबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ज्वाइन और यू कैन से कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। तो नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब हम लोग ऐसे ही करते जाए फटाफट, जो टफ लगेगा वो हम बताते जाएंगे, ठीक है, आप लोग बताते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड द टाइटल्स ऑफ द कोर्स दे रजिस्टर्ड टू। प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आपकी बार अनन्या बताएगा। अनन्या, लिस्ट द नेम ऑफ स्टूडेंट and the title of the course for course they registered to। चलिए बताइए। कौन बताएगा? अनुराधा, अनुराधा बताएंगे? अनुराधा है नहीं। मनीषा यस सर। बताओ बेटा। चलो आप छोड़िए और कोई बता दो। अटेंडेंस होगी भाई, सभी से कहा था मैंने कि अटेंडेंस होगी, बस बच्चे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्या बात है। नन्या भी चली गई, जीम भी चला गया, सगा भी चली गई, शिवम भी। बताओ बेटा, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड द टाइटल ऑफ द कोर्स दे रजिस्टर्ड टू, क्या करेंगे? ये तो स्टूडेंट की लिस्ट है। सर टाइटल और एसएसएन से प्रोजेक्ट करा लेंगे, तो नेशनल करके कोर्स और रजिस्टर का स्टूडेंट चाहिए और नेम ऑफ द, यानी ये वैल्यू चाहिए और टाइटल चाहिए यहाँ से। अब लेकिन ये रजिस्टर्ड भी, यानी कि तीनों टेबल का यूज हो गया। तीनों टेबल का यूज कैसे होगा कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट ने जो कोर्स, टाइटल ऑफ द कोर्स और रजिस्टर्ड, यानी कि पहले, यानी कि तीनों का ज्वाइन हो गया। तीनों का ज्वाइन हो गया क्या मतलब क्या हो गया, यू कैन जस्ट ज्वाइन ऑल स्टूडेंट विद देयर कोर्स, सबका केवल एक ही कॉलम होगा, ये किससे ज्वाइन होंगे,
कोर्स एसएसएन से, और ये होगा जाकर के किससे, रजिस्टर्ड से। ठीक है, और इसमें से उसको क्या चाहिए, इसमें से चाहिए केवल नेम और टाइटल। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया, समझ रहे हैं ना। ठीक है, अब ऐसे ही आप लोग, ये लोग आपके पास ये क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व करिएगा। ठीक है, और इसमें देखिए फिर ये आ गया, एसएसएन ऑफ स्टूडेंट हु आर रजिस्टर्ड फॉर बोथ database system and the analysis of algorithm, for both database system and analysis algorithm। ये देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया था, यहाँ पे बेसिकली और होना चाहिए था, एक और पूछा गया था, एक एंड पूछा गया था। तो आप क्या करिए कि पहले एसएसएन नंबर निकाल लीजिए जो रजिस्टर्ड हुए हैं। ठीक है, स्टूडेंट जिनका जो डाटाबेस पढ़ रहे हैं, फिर वो निकाल लीजिए एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम जो पढ़ रहे हैं। अगर एंड है तो आपको कौन सा ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। और आपको और होगा तो कौन सा ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा, यूनियन। तो ये यूनियन और इंटरसेक्शन का प्रॉब्लम था। दूसरा, नेम ऑफ स्टूडेंट हु आर रजिस्टर्ड फॉर बोथ डाटाबेस सिस्टम एंड एनालिसिस। ठीक है, जो दोनों ही रजिस्टर्ड किए हुए हैं, ठीक है, वो आप दोनों निकाल लेंगे एक बार, एक ही कंडीशन में, जो डाटाबेस भी पढ़ रहे हैं और एनालिसिस भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो आप निकाल सकते हैं। लिस्ट ऑफ कोर्स इन विच ऑल स्टूडेंट आर रजिस्टर्ड, लिस्ट ऑफ कोर्सेज इन विच ऑल स्टूडेंट्स आर रजिस्टर्ड। तो क्या होगा इसमें, डिवीजन ऑफ ऑल स्टूडेंट आर रजिस्टर्ड। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल देखिए, इसका लिस्ट ऑफ स्टूडेंट फॉर ऑल स्टूडेंट आर रजिस्टर्ड। सो इन दैट यू कैन से यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, कितने स्टूडेंट्स है। तो पाई ऑफ स्टूडेंट निकाल लीजिए, पाई एसएसएन ऑफ स्टूडेंट। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन आ गई कि सारे स्टूडेंट। ऐसा कोई कोर्स जिसमें सारे हैं तो किस टेबल से है, रजिस्टर टेबल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इससे किसको, रजिस्टर टेबल को। तो पाई कोड और एसएसएन बाई रजिस्टर टेबल। So you can get the all the code by which you can get the all students, right? This will be your answer. और देखिए कौन सा क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ कोर्स इन विच ऑल ईसीपी एमपी मेजर स्टूडेंट आर रजिस्टर्ड। तो आपको क्या करना है, ईसीएमपी मेजर स्टूडेंट आर रजिस्टर्ड। तो मेजर ईसीएमपी यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो उससे आप निकाल लीजिए क्या, एसएसएन। यहाँ से एसएसएन निकल आएगा, इसका कोई ना कोई एसएसएन होगा जिसमें ये कोर्स पढ़ रहा है। अब उससे क्या करेंगे, फिर हमें क्या पता करना था, कोर्स इन विच ऑल। तो इस मेजर में जितने भी बच्चे हैं उनके सारे एसएसएन आ गए। अब उससे आपको ये जो बच्चे हैं लिस्ट ऑफ द कोर्सेज, तो वो कोर्सेज निकालने के लिए आप इससे ज्वाइन कर देंगे और आपके पास कोर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लिस्ट ऑफ कोर्स आ जाएगा, सीआई नंबर आ जाएंगे सारे। ठीक है, तो ये थी आपकी ये। नेक्स्ट देखिए, इसमें और भी देखिए, इस यूनिट से इसमें आया एक कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सुपर की एंड कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की। ये आप लोग आराम से कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। व्हाट डू यू मीन बाय ये की टू द रिलेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सुपर की, कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की। बताइए कितने मार्क्स में क्वेश्चन आया, 10 into 5, दैट मीन्स 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ है। और आपको सबको पता है ना कि सुपर की क्या होती, कैंडिडेट की क्या होती, सुपर प्राइमरी की क्या होती है, पता है ना सभी को। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। और देखिए इस यूनिट से, इसके अलावा इस वाले चैप्टर से यहाँ पर तो कोई भी क्वेश्चन नेक्स्ट दिया नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट यूनिट ये 10 into 2 है, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स। तो देखिए एडवांटेज है ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम विच वर रिमूव्ड बाय द डीबीएमएस। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये डिफरेंस एंड एडवांटेजेस फाइल वर्सेस डीबीएमएस रट के जाइएगा, आता ही आता है। देखिए फिर से यहाँ पूछा गया रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है, उसके बारे में बताइए।
यहाँ पूछा गया देखिए डीएमएल एंड डीडीएल स्टेटमेंट क्या होता है। यहाँ देखिए पूछा गया एग्जांपल ऑफ सिंपल कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस बताइए। कितना आसान क्वेश्चन थे, ठीक है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए होंगे, ठीक है। 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन हैं। यहाँ पे देखिए फिर से एनोमली, ये अभी हम आपको सब पढ़ाएंगे, ये तो है ये वाला। अब दूसरा जो है इसी में मैंने नोट कराया हुआ है, ये वाला 16-17 का। 16-17 का देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये रहा 16-17 में। देखिए यहाँ पे कार्डिनलिटी के बारे, डाटा मॉडल के बारे में पूछा गया है कि डाटा मॉडल क्या है। थ्योरी बहुत आता है इसमें, आराम से अगर आप पढ़ के जाएंगे तो इसको पास तो कर ही लेंगे, बट अच्छे मार्क्स करने के लिए आपको एसक्यूएल, रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल कैलकुलस ढंग से करके जानी, और ईआर मॉडल, ये 3 चीजें बहुत ढंग से करके जानी। व्हाट इज डाटा मॉडल, लिस्ट द टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल यूज, गिव एग्जांपल फॉर 1-to-1 एंड 1-to-many रिलेशनशिप यू कैन डू। फिर से देखिए हाउ ए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कैन बी इम्प्लीमेंटेड। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को लोग थोड़ा सा समझते हैं कि लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं आता है, इसलिए बहुत बार ये पूछा जाता है। बट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्सेप्ट नथिंग बट इट इज ए काइंड ऑफ ए फॉरेन की इंप्लीमेंटेशन, और फॉरेन की के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है ये आपको पता ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। फिर देखिए प्रॉपर्टी, ये तो अभी अभी आएंगे सारी चीजें, बट यहाँ पे देखिए फिर से वही चीज आ गया। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन डेटाबेस एम्प्लॉय, देन कंपनी, देन मैनेजेस, वर्क्स, राइट। ये देखिए आपके पास सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और उसके ऊपर उन्होंने एसक्यूएल क्वेरी पूछी गई है। एसक्यूएल क्वेरी में क्या है, फाइंड द नेम्स एंड सिटीज ऑफ रेजिडेंस ऑफ ऑल एम्प्लॉय हु वर्क्स फॉर XYZ, फाइंड द नेम, स्ट्रीट एड्रेस एंड सिटीज ऑफ रेजिडेंस ऑफ ऑल एम्प्लॉय हु वर्क्स फॉर XYZ एंड 10,000 एनम कमाते हैं, ठीक है, सैलरी दी हुई है। लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय इन दिस डाटाबेस हु लिव इन द सेम सिटी एज द कंपनी फॉर विच दे वर्क, यानी कि कंपनी का जो एड्रेस है वही अगर एम्प्लॉय का एड्रेस है वो आपको डाटा निकालना है, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन पेपर, राइट। ठीक है, तो ये आप दोनों पेपर करके लाएंगे। दोनों पेपर का, ये क्वेश्चन नंबर 2 का एसक्यूएल पार्ट, और फिर जो हमने यहाँ पे छोड़ रखे हैं, ठीक है, ये इस वाले क्वेश्चन पेपर का, ये वाले, ये जो बचे हुए हैं क्वेश्चंस हैं इनको आप करके लाइएगा इस यूनिट से रिलेटेड, ठीक है। और कोई आपको डाउट हो तो आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई और डाउट हो तो पूछ लीजिए। हेलो, Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. चलिए कोई नहीं, जब डाउट हो तो पूछ लो या करो, ठीक है। चलिए, हैव ए नाइस डे।